علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات۔ درج ذیل فہرست پہ آج ہم بات کریں گے شاعرانہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہم تعارف اور ان کی جو شاعرانہ خصوصیات کی جو ہیڈنگس ہیں یا آپ سرخیاں کہہ لیں تو اس میں ہم بات کریں گے سوز و گداز، سادگی، درویشانہ انداز، صوفیانہ رنگ، زمانے کی بے ثباتی، آفاقی شاعر، عشق مجازی، عشق حقیقی، انداز بیاں، اپنے دور کی عکاسی، آدمیت، ذاتی شخصیت کا آئینہ، فن شاعر، خلوص و صداقت، بے ساختہ پن، اجمال و امائیت، فارسیت، بول چال کا انداز، تراکیب کا استعمال، محاوراتی زبان، پیرائے ہائے ادا، ندرت خیال، طنزیہ انداز، عام محقات اور آخر میں حرف آخر۔ عزیز طلباء، دیگر باتیں شروع کرنے سے پہلے ہم ان کے تعارف پہ ذرا نگاہ کرتے ہیں۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ لفظوں معنی کے میر تقی میر جو ہیں وہ جادوگر تھے، وہ بے مثال شاعر تھے اور اردو غزل میں ان جیسا ایک آپ کہہ لیں جادوگر کوئی اور شاعر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے عصیر میں سب کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ جو شاعری مطلب آپ کئی زمانے گزر گئے ہیں اس کے باوجود آپ کی شاعری تر و تازہ ہے، اور جو جتنے بھی لوگ تھے جو بڑے بڑے شاعر اپنے دور کے رہے انہوں نے آپ کو استاد کہا ہے، حتیٰ کہ وہ خود استاد تھے۔ تم کبھی میر کو چاہو کہ وہ چاہیں ہیں تمہیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ آپ کے تعارف پہ چیدہ چیدہ سی باتیں آپ نے لکھنی ہیں، جیسے کہ پیدائش 18 مئی 1723، وفات آپ کی 22 ستمبر 1810 ہے، نام محمد تقی ہے، تخلص میر، لقب آپ کا خدائے سخن، اور والد کا نام محمد علی متقی۔ آپ نے کافی ساری کتابوں میں اگر پڑھا ہوگا تو اس میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوں گی، لیکن چونکہ میر تقی میر کی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہیں، جو ہمارے پاس ان کا آپ کہہ لیں بایو ڈیٹا ہے وہ مختصر ہے، تو لہٰذا یہ چیدہ چیدہ سی باتیں آپ لکھیے گا۔ تصانیف: ذکر میر، فیض میر، دیوان میر۔ آپ کے 6 دیوان اردو کے تھے، ایک فارسی کا تھا۔ نکات الشعراء، دریائے عشق جو کہ آپ کی مثنوی ہے، مؤخر الذکر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوز و گداز کی، جو کہ آپ کی شاعری کی سب سے اولین خصوصیت ہے۔ سوز و گداز، سوز کہتے ہیں جلنے کو، گداز یعنی نرم۔ میر تقی میر کی جو شاعر ہیں وہ سوز و گداز کے شاعر ہیں۔ ان کی تمام شاعری جو ہے وہ غم، اندوہا یا الم کی دردناک تصویر ہے۔ ان کا کلام جو ہے وہ ان کے درد کا آئینہ ہے۔ میر کے جتنے بھی شعراء ہیں وہ ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت رہی ہے، لیکن میر کے جو 72 نشتر ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ 72 یعنی 72، نشتر یعنی کہ تیر۔ جو نشتر ہے نا وہ ان کے ہاں کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ وہ جو 72 شعر ہیں ان کے، وہ دراصل ان کے تیر کی مانند ہے، یعنی درد میں ڈوبے ہوئے جو دل میں جا کے لگتے ہیں۔ تو ذرا شعری حوالہ دیکھیے گا۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ سادگی: جب انسان درد کی کیفیت کا اظہار کرتا ہے یا اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتا ہے تو عمومی طور پہ وہ سادہ زبان کا استعمال کرتا ہے، تب اس کو اتنا سوچنے کا وقت نہیں ملتا کہ وہ اس کو کسی حسین پیرائے میں ڈھال کر لفظوں کو لکھے۔ میر دلی کے رہنے والے تھے اور دلی کے ہاں یہ خوبی تھی کہ وہ عموماً سادگی پسند لوگ تھے اور وہ سادہ ہی لکھتے تھے، تو ان کا کام بھی یہی تھا کہ عوام تک ان کی بات پہنچے۔ لگا نہ دل کو کہیں، کیا سنا نہیں تو نے جو کچھ کہ میر کا اس عاشقی نے حال کیا۔ درویشانہ انداز: میر کے جو آپ کہہ لیں کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کا جو ابتدائی یعنی بچپن ہے ان کا، وہ ان کا صوفیانہ درویشانہ ہی لوگوں میں گزرا ہے ان کا، تو لہٰذا ان کے اندر وہ جو درویشی صفت ہے آپ کہہ لیں صوفیانہ جو صفت ہے وہ ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، جو کہ بعد میں ان کی شاعری میں بھی جھلکتی تھی۔ جیسے کہ یہ شعر دیکھیے گا: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ صوفیانہ رنگ: جیسے ہم نے ذکر کیا درویشانہ رنگ، صوفیانہ رنگ۔ درویشانہ رنگ وہ ہوتا ہے جو انسان دنیا سے کٹ کر زندگی اللہ سے گزارتا ہے۔ صوفی رنگ وہ ہوتا ہے جو عشق حقیقی کو جو ہے دنیاوی پیرائے میں ڈھال کر بیان کرتا ہے۔ اس موضوع پر میر کے خیالات کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ خدا ہے، مگر اس کا ادراک عقل و فہم انسانی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی خدا تو موجود ہے لیکن اس کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے یہ میر نہیں جانتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تصوف میں جب ڈال دیتے ہیں بات،
खुदा बस कहीं है, ये तौहीद है। मौसीक़ियत। मीर के कलाम में लुत्फ़ का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें मौजू है, जो एक पहलू है, वो ये है कि उनकी गज़लों में मौसीक़ियत का वो बड़ा ख्याल रखते हैं। इस मकसद के लिए वो अलग अलग किस्म के जो काफ़िए हैं, जो बहरे हैं, उनको बड़ी निफासत से इस्तेमाल करते हैं। ज़रा ये शेर देखिएगा। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। ज़माने की बेसब्बाती। मीर तकी मीर के हाँ जो एक मजबूरी और बेबसी की जो हमें नाकामी या मायूसी की जो हमें एक हालत मिलती है, उस वजह से मीर के हाँ ये चीज़ ज़्यादा मतलब पाई जाती है कि वो दुनिया को गैर मयारी समझते हैं। उनको पता है कि दुनिया जो है कुछ चंद दिन की है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो उसके जो नकारापन है या ज़माने का आप कह लें कि जो अधूरापन है, उसको उन्होंने बड़ा अपना मौजू बनाया है अपनी शायरी में। कहा मैंने कितना है गुल का सवाद, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। आफाकी शायर। दर्द एक लाजवाल और एक आफाकी जज्बा है। क्योंकि मीर की शायरी जो है उनके ज़ाती दर्द व गम के तर्जुमान है, इसीलिए उनकी शायरी जो है हर शख्स के दिल की आवाज़ बन गई और यही आवाज़ जो है बाद में आफाकी बन गई। जितने भी ज़माने गुजरे हैं, मीर को वही अहमियत हासिल रही है जो किसी भी बड़े शायर को होनी चाहिए। लिहाजा वो एक आफाकी शायर है जो हर ज़बान हर ज़माने की कैद से आज़ाद है। अब के जुनूं में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरीबां के चाक में। इश्क मिजाजी। मीर के कलाम का खास मौजू वारदाते हुस्न और इश्क का जिगर खराश बयान है। इनकी शायरी इश्क मिजाजी की गमगीन तस्वीर है। वो हुस्न परस्त थे, इश्क की कैफियत से गुजरे तो सहल अंदाज में शायरी में इश्क मिजाजी को बयान किया। यूं उठे आह इस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। कि हाँ इश्क हकीकी के साथ साथ इश्क मजाजी का रंग भी मिलता है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, क्योंकि वो बचपन में ही मशाइख व सूफिया किराम के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। तो इनके हाँ जो इश्क हकीकी है वो तौहीद वहदत शुहूद की शक्ल में हमें नजर आती है। वो अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी शायरी में करते हैं। जैसे ये शेर देखिएगा। था मुस्तारे हुस्न उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी इस ही का जरा ज़हूर था। अंदाज़े बयां। मीर की शायरी का बुनियादी जौहर इनका अंदाज़े बयां है। ये तर्ज खास आम में मकबूलियत का दर्जा इख्तियार कर गया था। इनके यहाँ सादा और शगुफ्ता मजमून सादा लबो लहजे में ही बयान किए गए हैं। जैसे ये शेर देखिएगा। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अपने दौर के अकासिम। हर शायर जो बड़ा शायर होता है वो अपने इर्द गिर्द के जो मंजरनामा होता है, वो सियासी हो, मुआशी हो या मुआशरती हो या मजहबी हो, वो उसके बारे में लिखता है। मीर तकी मीर ने अपने करीब, चूँकि दिल्ली में रहते थे, दिल्ली उस वक्त उजड़ रहा था, तो उन्होंने बड़े करीब से इस चीज़ को देखा। बाद में वो लखनऊ चले गए थे। तो जो सियासी मंजरनामा था उस वक्त का, जो हुकूमती या सल्तनत का जो मंजरनामा था, उन्होंने इस चीज़ को देखा और आंखों देखा हाल उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। बाज़ अगर आप उनके शेर देखें तो ऐसा लगता है जैसे मीर तकी मीर जो है हमें सियासत पे कोई मौजू बता रहे हैं। शेर देखेगा। मीर साहिब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। ज़ाती शख्सियत का आईना। मीर की शायरी इनकी सवाने उम्री है। सवाने उम्री कहते हैं कि जिसमें इंसान अपने हालात की ज़िंदगी को लिखता है। इनके दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, मुसरत हो, ज़माने की आप कह लें हालात हो, रोज़गारी हो, किसी की शागिर्दगी अख्तियार करना हो या उस्तादी हो, हादसात, तजर्बात, गर्ज़ उन्होंने अपने तमाम एहसासात और जज्बात को शायरी में ढाल के लिखा है। नामुरादाना ज़ीस्त करता था, मीर का तौर याद है हमको। आदमियत। मीर की ज़बान और कलम से हुस्न सदाकत के वो पहलू नुमायां होते हैं जो मुद्दतों तक इंसानी बसीरत और मुसरत में इजाफा करता रहता है। मीर भी इसी सफ के आदमी हैं। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। फन शायरी। मीर शायराना आर्ट की बुनियाद इस तसव्वुर हुस्न पर रखते हैं कि जो सलीका शायरी होता है, वो कहते हैं हर चीज़ जो है वो सलीका मंदी से की जाए। इसी मुनासबत से वो जो शायरी है उसे अपनी ज़िंदगी में एक फ़न की हैसियत रखते हैं, मतलब फ़न की हैसियत करार देते हुए शायरी करते हैं। मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। खलूस व सदाकत।
फनी खलूस और सदाकत से मुराद ये है कि शायर और अदीब अपने तजर्बात और जज्बात और एहसासात का सही इजहार करे, यानी उसमें किसी भी किस्म का रद्दोबहल या मसनूई जो एक अंदाज है वो अख्तियार ना करे। मीर तकी मीर ने भी इजहार बयान में इसी खलूस से काम लिया है। ए मीर शेर कहना क्या कमाल इंसान, ये भी ख्याल सा कुछ खातिर में आ गया है। मीर आलमाना और फाजिलाना तज़यीन और आराइश से काम नहीं लेते, बल्कि सादा अल्फाज में बेतकल्लुफ़ तौर पर अपने जज्बे का इजहार करते हैं। जरा ये शेर देखिएगा। इस पर्दे में हमदिल कहता है मीर अपना, क्या शेर व शायर है यारो शार इश्क। अजमाल और इमायत। मुसल्लिम है कि शदीद जज्बाती तहरीक अजमाल और इमायत का तकाजा करती है। तगज़ुल खारजी रंगों के बावजूद दाखिली पैदावार होती है, तो मीर की जो शायरी के जो अहम तरीन हिस्से हैं उसमें इमायत और इजमाल यानी खूबसूरती मुकम्मल तौर पे झलकती है। क्या कहूँ तुझसे कि क्या देखा है तुझ में मैंने, इश्वाओ गमज़दा अंदाज़ो अदा क्या क्या कुछ। फारसी से लफ्ज़ निकला है। मीर गज़ल को सनाती लिहाज से मुकम्मल करने के लिए इसमें फारसियत पैदा करते हैं, जिससे एक नई बात वजूद में आती है। मैं कौन हूँ ए हम नफ्सा सोखता जाहूँ, एक आग मेरे दिल में है जो शोला फिशा हूँ। बोलचाल का अंदाज। मीर के अंदाज की खूबी इनकी शायरी का लबो लहजा है, जो आम इंसानों के लिए मरगूब तबह है। इनका लबो लहजा आम इंसानों के जज्बात को मुतासिर करता है। शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, गुफ्तगू पर मुझे आवाम से है। तराकीब का इस्तेमाल। मीर के कलाम में फारसी तराकीबें और अल्फाज भी हैं, मगर उन्होंने महज आला तबके को मरगूब करने को या इल्मी शान पैदा करने की कोशिश नहीं की। इनकी तराकीब जो है बहुत सादा और रवां है और कुदरती है। तकल्लुफ न कर आह मुझे जुम्बिश लब की, मैं सद सुखन आगश्ता बखूं ज़ेर ज़बां हूँ। महावराती ज़बान। तबकातुश शुअरा के मुसन्निफ ने मीर को मुहावरा दान मुतय्यन का लक़ब दिया है। मीर रोज़मर्रा मुहावरे की पुरसलीके इस्तेमाल से ज़िंदगी के आम और मानूस हालतों में मुसव्वरी करते हैं। हाथ से तेरे अगर मैं नातवा मारा गया, सब कहेंगे ये कि क्या एक नीम जा मारा गया। पेराया हायान था। मीर को इस्तदलाली अंदाज से ज़्यादा बयानिया और बयानी से ज़्यादा खताबिया जो रग़बत है। मीर के यहाँ हमें खिताब का जो और बयानिया के जो एक अशार मिलते हैं वो अदानिगारी के तौर पे इनके यहाँ इस्तेमाल होते हैं। कहता था किसू से कुछ तकता था किसू का मुँह, कल मीर खड़ा था यहाँ सच है कि दवाना था। नुदरत ख्याल। मीर के अंदाज की खालिस बात तुरफगी और नुदरत है। इनका जहन हर चंद जिंदगी की आम फहम बातों को बयान करता है, मगर वो रविश से हटकर हर इन बात को नया लिबास पहना कर पेश करते हैं। होगा किसी दीवार के साए के तले में, क्या काम मोहब्बत से इस आराम तलब को। तंज़ी अंदाज। मीर बाज़ जगह सोक़ियत और इब्तिज़ाल तक उतराते हैं, मगर इनके यहाँ तंज बड़ी पुरलतीफ़ सूरत में मिलता है, जो इन्हें दूसरे शोरा से मुमताज़ करता है। आबे हयात वही ना जिस पर खिज़्र सिकंदर मरते थे, खाक से हमने भी भरा वो चश्मा, ये भी हमारी हिम्मत है। आम महकात। मीर ने अपनी शायरी में जिन लफ्ज़ी तस्वीरों से काम लिया है वो हर किस्म की हैं, मगर मीर का मैदान अगरचे तगज़ुल है, मगर वो मुरक्कबे तशबीहात से तस्वीरें खींचते हैं। गुल फूल कोई कब तक झड़ झड़ के गिरते देखे, इस बाग में बहुत अब जो गुंचा में रुका हूँ। हर्फ़ आखिर। सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि हर बड़ा शायर एक ख़ास तर्ज का मालिक होता है, मगर बाज़ साहिब कमाल ऐसे होते हैं जिनका फ़न हुनर और फ़न हर दौर को मुतासिर करता है। मीर तकी मीर भी इन्हीं साहिब कमालों में से एक है। गालिब कहते हैं कि रेख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। शुक्रिया।